So hello everyone, this is Akshay here and today we are going to cover a question: reverse a linked list in a group of size k. So if you are new to this channel and you have not yet subscribed, please subscribe it and hit the bell icon to get the regular updates about the channel. Okay, so let's start. So yesterday in the last lecture we covered the question of reversing a linked list, right? So how now the question is that how can we reverse a linked list in a group of size k? Let's say for this particular linked list the k is given as 3. So 10, 20, 30 it should be reversed, and then the next 3 node should be reversed and the next 3 node should be reversed, and that's the output you need to return, right? How we can do so? So considering that we know, considering that you have seen my last video of how to reverse a particular linked list, so can we do something like that कि हम हर k nodes के लिए we call the reverse function, right? So if you do the reverse thing, if you do the reversal for just k nodes, so 10, 20, 30, 40, right? So after this thing has been reversed, so what would be, regarding to my last video, what would be the pointers again? So यहाँ पर क्या हो जाएगा कि it should look like 30, it should look like 10 should be here, 20 should be here, 30 should be here, just the link should be reversed. So 30 is now pointing to 20 and 20 now pointing to 10, and here the rest of the list will go on, so 40, 50, 60 and rest of it, right? So the previous would be pointing to here after writing the reversal code for just for the k elements, and then this 10 would be again pointing to head because this is the thing which has a pass at the linked list and the head was pointing to 10, right? Now the current and next pointer, so the current will be pointing to here and the next will be pointing to here as well in the 40 in the node which has the value as 40, right? So what can I do is that after writing a reversal code, let's say that we are writing a linked list reverse code, and once that is complete I'm just checking that if my next pointer, if next is not equals to null, then what I will do that I will call the reversal thing, like I will call the same function again for the k nodes again, right? So what I can do is that what this function will take the parameters as, let's say you have a node, right? The return type is node, and then you are passing the function, you are passing the parameters head and the k, right? So this is the thing, and then you have a certain thing like the 4 lines of code which we explained in how to reverse a linked list here, 1 2 3 4, and then at the last, at the second part, you will just check that if next is not equal to, that means the rest of the lists are still remaining, that needs to be reversed. So what I will do, what we can do here is that we will just say we will make a node new head, right? New head, and which will call the same function, so node reverse. So the इसका रिटर्न टाइप नोट था यार, बट इसके फंक्शन का कॉल क्या, फंक्शन के नाम क्या था, रिवर्स. So we will call reverse, and now I need to reverse 40, 50 and 60, right? So now the new head, like when I reverse 10, 20, 30, the head of this particular linked list was 10. For 40, 50 and 60, the head would point to this 40, like the node which has the 40 value, right? तो यहाँ पे कौन सा pointer इसको store कर रखा है, next, right? So I can just say the next and comma, I want to reverse again the k nodes, right? As soon as I get, as soon as this will get reversed, so what will happen is that it will look like 60, right? It will look like 50, 40, right? And then the rest of the linked list will continue again, like it would be 70, 80 and 90, right? Just for this call I'm saying, right? And this 60 would be stored in the which thing, a remaining head, or let's say new head, which we have name it new head, right? What I need to do now, that यहाँ पे जो 10 है, this is pointing to actually 60, right? और 10 हमारा actual किस में store है, head में, right? And 60 is pointing to which, new head. So what I will say that head dot next is nothing but new head. So that is what I'm gonna write here, that if next not equals to null, then this is the first statement that you need to execute. The second statement would be that head dot next will nothing but be the new head, right? And at the last you need to return previous, because this 10, 20 and 30, the kth node of our first group would be your head of your entire output. Does that making sense to you? If you see here 10, 20, 30, if you reverse it, 30, 20, 10, so this is the kth node of your entire linked list, and that would be your actual head.
इसको किस पॉइंटर ने स्टोर कर रखा था, प्रीवियस ने, राइट? सो एट द एंड ऑफ द इंटायर कोड वी विल जस्ट से return previous, and that's it. That would be the end of the code, right? Okay, so now let me complete the pseudocode for you in the right hand side section, and then we will see a complete dry run. Okay, so that's the entire pseudocode here. As you can see, for the function node reverse head comma k, that we first of all we need to पहले के नोड्स को हमें रिवर्स करना होगा, राइट? और ये जो कोड है, ये जो कोड ग्रीन कलर में लिख रखा है, दिस इज एक्चुअली द कोड टू रिवर्स अ लिंक लिस्ट। बट यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन ये है कि वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, ये तो रहेगा ही स्टैंडर्ड कोड, साथ में एक और हमें पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एक कंडीशन में पास करनी, वाइल काउंट इज लेस देन के, और काउंट प्रोसेस करते जाना है। जैसे ही हम तीन नोड्स लाइक केथ नोड की नोड्स को हम रिवर्स कर दिए, वहां हमें इस वाइल लूप को ब्रेक कर देना है, राइट? अगर आप देखो लास्ट वीडियो पे मैंने आपको ये ड्राइवन दिखाया था, ये आपको कोड समझाया था। इफ यू सी दैट दिस कोड इज एक्चुअली एग्जैक्टली सेम with this code, right? The only additional task that we need to do here is that for the rest of the nodes, that is the k plus 1 node, your current and next pointer will be pointing to this k plus 1 node. So for that you need to check if that node exists. If next is not equal to null, then you again call the same function and reverse the k nodes, right? And what will happen then if you do this? So this 60, 50 and 40 will be your second group, second reverse group, and the head of your second group would be stored in, let's say, new head, because we have called that function using on a new variable that is new head, right? हमने इसमें से स्टोर कराया, जैसे इसमें स्टोर कराया हमें अब इस दो अलग अलग लिंक लिस्ट को मैच क्लब भी करना होगा, राइट? सो पहले लिंक लिस्ट का जो हेड था, राइट, पहले लिंक लिस्ट का जो हेड था, अगर आप देखो, अगर आउटपुट पे देखो तो हमें क्या करना है, 30 20 10, ये 10 जो है एक्चुअली 60 से क्लब कर रहा है, राइट? ये 10 एक्चुअली कहाँ स्टोर हुआ था, हेड पे, इसका रेफरेंस हेड था, राइट? तो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू हेड, करेक्ट? आई होप आपको ड्राइवन समझ में आ गया है। एंड सिमिलरली जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो थर्ड पार्ट ऑफ ग्रुप है, वैसे ही ये भी रिवर्स होगा, राइट? इन द सिमिलर फैशन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड रिकर्सिव कॉल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपके पास क्या है, 10 20 एंड 30, राइट? मैं 10 20 एंड 30, राइट? तो ये रिवर्स्ड हुआ, और आपके पास नेक्स्ट लिस्ट क्या है, 40 50 एंड 60। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर है और करंट पॉइंटर, इसने चेक किया कि नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट? सबसे पहले इसको रिवर्स करो, इट वुड बी लाइक what it would be 30 20 एंड 10, राइट? और यहाँ पे इसका है हमारा हेड, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रिवर्स हो जाएगा, ये नेक्स्ट फंक्शन कॉल होगा जिसमें हम कह देंगे कि दिस इज नथिंग बट 60 50 एंड 40, राइट? और ये यहाँ पे क्या है, दिस इज माई न्यू हेड, दिस इज माई, where is my pointer, this is my new head, राइट? अब इसके बाद एक और फंक्शन कॉल होगा, राइट? अभी भी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमने तुरंत से चेक कर लिया कि अगला नेक्स्ट पॉइंटर नल है या नहीं, राइट? तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर लिस्ट के लिए हमारे पास एक और क्या है, 70 80 एंड 90, यहाँ पे होगा नेक्स्ट और करंट, राइट? ये देखा, नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, अगेन डू अ रिकर्सिव कॉल, राइट? सो इट विल अगेन change the list, it would be 90 80 and 70, and again this would be stored in a new pointer, let's say new head, right? ठीक है, अब देखो, जब ये दूसरा फंक्शन कॉल किया था, राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा था, नेक्स्ट कॉमा के, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 40 है, और हमने ऊपर क्या बोला कि करंट इज इक्वल्स टू हेड, राइट? तो मतलब ये जो 40 है हमारा, ये एज अ हेड एक्ट कर रहा होगा, राइट? फॉर दिस रिकर्सिव कॉल ये हमारा हेड होगा, राइट? और ये जो न्यू हेड है, इसके बाद जो 70 के बाद वो नल है, राइट? तो अगेन ये चीज नेक्स्ट इक्वल नल हिट नहीं होगी और यहाँ से रिटर्न प्रीवियस हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स हमारा ये रिटर्न हो जाएगा, इसका एक्चुअल हेड दैट इज 90 यहाँ से रिटर्न हुआ, और सेकंड देखो, अब सेकंड स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट हो, क्योंकि अब हमारे पास पेरेंट कॉल का मतलब जैसे रिकर्जन स्टॉप हुआ तो हम उसका नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हेड डॉट नेक्स्ट, इसका हेड क्या था, 40 वुड बी अटैच्ड टू दिस थिंग, राइट? एंड देन अगेन इट विल गो बैक टू इट्स नेक्स्ट प्रीवियस कॉल, राइट? यहाँ पे 60 है और यहाँ पे देखो हेड है, तो दिस विल बी अटैच्ड टू दिस थिंग, करेक्ट? So the resultant list will be what, 30 20 10, and 10 is attached to 60 50 40 and 40 is attached to 90 80 and 70, and that is our answer. Okay, I hope you were able to relate well with the dry run. So this was the approach, this was the code, this was the dry run for a recursive approach. ये जो हमारा क्या था, recursive approach था,
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? इफ यू सी दैट वी आर विजिटिंग ईच एंड एवरी नोड इन आवर लिंक लिस्ट, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n, बट will be space complexity also involved for this particular problem? Yes. कैसे? That you are always storing, you are making a recursive call and you need to track back to execute this line of code head dot next, correct? So that means ये हमारा पहला call हुआ, bunch of k elements, then second call again bunch of k elements, and third call again bunch of k elements, right? So that means how many calls, what is the space, what is the recursive stack that space you're using? So it would be n by in each and every call you are using k elements, right? So it would be n by k. तो ये जो वैल्यू आएगा इसमें पता चले कि ये एक्चुअल हम स्पेस यूज करेंगे अपने रिकर्सिव स्टैक में, सो इट वुड बी O of n by k, राइट? नाउ इट्स हाईली एनकरेज फॉर यू गाइस टू प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड एक आप खुद से एक टेस्ट केस लो, इस पर्टिकुलर कोड को ड्राइन करो, कुछ भी हार्ड या ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, यू जस्ट ड्राई रन योरसेल्फ and then your next step would be code this particular pseudocode in your code editor. And yes, please pause this video for 5 to 7 minutes and code it yourself. So great, as you can see, this is the exact pseudocode which I've explained you in the open board, so I don't think a walkthrough is needed because I've already spent a lot of time in giving the dry run and a walkthrough. So let us hit the compile button. Okay, so there was done something wrong. Okay, तो यहाँ पे जो node है इसको आप head से replace कर दो because we are using in the code as current equals to head, right? Okay, let us wait. So great, as you can see compilation successful हो गया. अब इसे submit करते हैं और फिर इसके C प्रोसेस कोड को देखेंगे और फिर एक और है जो दूसरा मेथड कि अभी हम रिकर्सिव से कर रहे थे, हम इसको इटरेटिव से कैसे कर सकते हैं. ग्रेट. ओके, तो ये रहा इसका C प्रोसेस कोड. आई डोंट थिंक वर्क थ्रू देने का जरूरत है बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस डीपली इन द ड्राई रन. सो लेट अस कंपाइल एंड रन. ओके, सो डेफिनेटली ये कंपाइल हो गया और ये सबमिट भी हो जाएगा. सो आई एम नॉट वेस्टिंग माय फर्दर सबमिशन हियर. सो ओके, लेट अस resume now. So can you do something? Can you do something and convert this particular recursive code in an iterative one so that we can optimize it, or we can reduce the space complexity into a constant, right? O of 1. Please try yourself for 5 to 7 minutes and then resume again. ओके, तो मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स लिखा है यार, आप देखो, आप समझो इस बात को, ठीक है? तो लेट्स से हमारे पास जो लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड k इज अगेन इक्वल्स टू 3, राइट? सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कोड कि अगर k नोड्स को रिवर्स करना है तो वो कैसे हो सकता है, राइट? वो हो जाएगा, ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. बट उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी पॉइंटर की नीड है? तो लेट्स सी जो 1 2 3 था, जो पहला नोड है वही हेड होगा और हमारा करंट होगा अकॉर्डिंग टू द नोड, अकॉर्डिंग टू द कोड विच वी राइट फॉर रिवर्सल, राइट? बट जब ये रिवर्स हो जाएगा 3 to 1, राइट? तो जब ये रिवर्स हो जाएगा तो इस 3 पे क्या हमारे पास स्टोर होगा? ये प्रीवियस स्टोर होगा, राइट? हमें फिर क्या बोलना होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारा ये जो थर्ड नोड है, हमारा केथ नोड है, वो हमारा हेड होगा, राइट? तो इसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा कि अब हमारा जो है जस्ट फॉर द फर्स्ट ग्रुप योर प्रीवियस विल बी नथिंग बट योर हेड वुड बी पॉइंटिंग टू प्रीवियस. तो हमें ये कहीं लिखना होगा, राइट? फॉर द फर्स्ट, जस्ट फॉर द फर्स्ट ग्रुप. आगे हम देखते हैं आगे ग्रुप्स के लिए क्या होगा. जब हमने इसको रिवर्स कर लिया तो ये जो फर्स्ट नोड था हमें इसको भी किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस में स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए लेट्स से एक वेरिएबल लेते हैं फर्स्ट. अब इसका जरूरत क्या है यार, राइट? इसका जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर इसको स्टोर नहीं किया, राइट, तो जब जो तुम्हारा अभी जो नॉन रिवर्स ग्रुप है 1 2 3, उसको व्हेन यू विल रिवर्स इट यू विल गेट 3 to 1. इस 1 का रेफरेंस इसलिए जरूरत है क्योंकि नेक्स्ट जो ग्रुप होगा नेक्स्ट क्या होगा? 6 5 and 4, राइट? तो इसको इससे क्लब कराना होगा ना, इसको इससे ज्वाइन कराना होगा. So that is why कि before reversing you need to store the first node of your non-reversed group. वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो. After you reverse that group, that particular node will help you to join it with the another list, like the list which is present in the right hand side, right? तो इसलिए मैंने इसको first लिखा है, right? And just for the first traversal हम लोग क्या करेंगे? head equals to previous कर देंगे, right? And we will store we will have a next pointer, let's say previous first, जो actually इसको point करेगा, right? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ previous first will be nothing but first, ठीक है, ठीक है. अब हमें ये let's say मिल गया, बस सुनते जाओ, कोड देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. अब let's say हमें जब ये मिल गया है, right, so then we do the same task for the rest of the thing, and now again 6 5 and 4 will be given to us, right? जिसके में पॉइंटर्स अपडेट कैसे होंगे? पॉइंटर्स अब क्या अपडेट हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा प्रीवियस अकॉर्डिंग टू द जो लिंक लिस्ट रिवर्स का कोड है. हम हमेशा हमारा जो हेड है रिवर्स लिंक लिस्ट का वो प्रीवियस में रिटर्न हो रहा था, ठीक है?
और यहाँ पे अब ये चीज अपडेट होके यहाँ पे आ जाएगी, ये प्रीवियस फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो मतलब जो पहला ग्रुप है हमें कुछ और टास्क करना है, उसमें हमें क्या टास्क करना है कि पहला चीज ये होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, दूसरा चीज कुछ नहीं, बस हमें यही चाहिए, राइट। बट जब पहला ग्रुप का टास्क खत्म हो जाए तो सेकंड ऑनवर्ड्स, फ्रॉम सेकंड पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहां से मेरे को क्या टास्क करना है, मेरे को इधर से ये टास्क करना है कि प्रीवियस फर्स्ट जो है, प्रीवियस फर्स्ट बहुत सिंपल यार, फर्स्ट नोड ऑफ योर प्रीवियस लिस्ट, ठीक है। बट वो रिवर्स होने के बाद वो लास्ट नोड बन जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट है हमें इसके नेक्स्ट को, मतलब जो भी इसका जो आएगा लास्ट 7 8 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 8 and 7, एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा स्टोर्ड, ये प्रीवियस पॉइंट में स्टोर करने का, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नथिंग बट प्रीवियस फर्स्ट डॉट नेक्स्ट नथिंग बट इक्वल्स टू प्रीवियस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो अटैचमेंट हुआ यार, ये जो अटैचमेंट हुआ, राइट, ये कब हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट इटरेशन के बाद ही हो रहा है, करेक्ट। फर्स्ट इटरेशन मतलब फर्स्ट ग्रुप जब रिवर्स हो जा रहा है तब उसके बाद ही ये काम हो रहे हैं, है ना। क्योंकि हो क्या रहा है, देखो हम जब इस सेकंड ग्रुप पे होंगे तो हमारा प्रीवियस फर्स्ट जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, जब हम सेकंड ग्रुप पे होंगे तो प्रीवियस फर्स्ट हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा और प्रीवियस यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, तो हम सेकंड ग्रुप को बोलेंगे, सेकंड ग्रुप का रिवर्सल के समय बोलेंगे कि प्रीवियस डॉट फर्स्ट को प्रीवियस बना दो। जब हम थर्ड ग्रुप पे रहेंगे, मैं थर्ड को इससे दिखा देता हूँ, जब हम थर्ड ग्रुप पे रहेंगे तो प्रीवियस फर्स्ट हमारा 4 पे होगा, राइट, और प्रीवियस 8 पे होगा, तो मैं बोलूंगा इसको इधर पॉइंट करा दो। चलो अब एक एक करके कोड पे चलते हैं, ठीक है। पहले हम नॉर्मल रिवर्सल का कोड लिखेंगे एंड देन आई विल शो यू कि व्हाट एक्स्ट्रा पॉइंटर्स आर नीडेड। देखो तो इतने कोड से क्या होगा कि हमारा जो के का ग्रुप है वो हमेशा रिवर्स होते चला जाएगा, राइट। बट हमने क्या डिसाइड किया कि फर्स्ट ग्रुप के लिए वी नीड टू डू सम अदर टास्क, दैट इज ये टास्क, और फॉर द सेकंड ग्रुप ऑनवर्ड्स वी नीड टू डू दिस टास्क, राइट। तो कुछ हमें फ्लैग वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि जब फ्लैग इक्वल्स टू 0 हो तो ये टास्क करो और फ्लैग को 1 मार्क कर दो, ये इफ में चला जाएगा, और ये एल्स पार्ट हो जाएगा कि जैसे ही फ्लैग इक्वल्स टू 1 है तो यहां से हमेशा सिर्फ इसको करो और यहाँ पे फ्लैग को हम फ्लिप नहीं करेंगे, राइट। मुझे एक फ्लैग वेरिएबल बनाने दो फिर आपको मैं दिखाता हूँ कोड, ठीक है। सो दैट्स द कोड हियर नाउ। हमने देखो क्या किया, हमने एक प्रीवियस फर्स्ट बनाया जो हमेशा जो विच विल स्टोर द लास्ट नोड ऑफ आवर रिवर्स्ड ग्रुप, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट क्या है, ये क्या स्टोर करेगा, टू स्टोर द स्टार्टिंग नोड ऑफ ईच ग्रुप बिफोर द रिवर्सल, राइट, विच विल आल्सो बी द लास्ट नोड आफ्टर गेटिंग दैट ग्रुप रिवर्स्ड। आई होप को ये बात समझ में आई होगी। फिर हमने नॉर्मल रिवर्सल का कोड लिखा है, के एलिमेंट्स को रिवर्स करो एंड द लास्ट वी नीड टू इफ एंड एल्स। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के लिए हमें ये चीज नहीं करनी थी, हमें क्लब नहीं करना है, राइट, वो सेकंड ग्रुप ऑनवर्ड से शुरू हुआ है। तो फॉर द फर्स्ट ग्रुप वी आर जस्ट सेइंग कि हमारा जो लास्ट जो तुम्हारा जो हेड आया है रिवर्स करने के बाद जो हेड आया है वो हमारा एक्चुअल हेड होगा पूरे आउटपुट के लिए, राइट। इफ यू सी दिस 3 विल बी आवर आउटपुट फॉर द entire linked list, right, after reversing each k groups. So that is why we are saying that head equals to previous and we are marking this flag variable as false कि इसके बाद कभी भी execute ना हो। Then we have a else statement जहाँ पे flag हमेशा check होगा as a false, and then we will do this thing that we will take the first group and we will club it to the second group and second group to the third and subsequent onwards, right. That's what I have written, pointing to new head of our current reverse group, ठीक है। And this is the step where we are actually maintaining the previous first. Previous first is nothing but the last node of your reversed group, ठीक है। And last node of your reversed group will be the first node of your non-reversed group, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना यार, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ये जो लास्ट नोड है मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो लास्ट नोड है ऑफ योर रिवर्स्ड ग्रुप, राइट, ये लास्ट नोड है ना ऑफ योर रिवर्स्ड ग्रुप, दिस नोड इज सेम एज द फर्स्ट नोड ऑफ योर नॉन रिवर्स्ड ग्रुप, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात आपको, ठीक है। यही देखो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा भी है, दैट इज अ वेरी मैंडेटरी जो हमें इटरेटिव अप्रोच में कोड करने में हेल्प किया, राइट। एंड दैट इज इट इट विल जस्ट keep on adding the k groups with another k groups and subsequently till the end of the lecture. That's it. Let us compile and run. And when it is compiling, what is the time complexity and space complexity? Time complexity is O of n. Definitely we are visiting each and every node. And the space complexity, we are not using recursion here, not using any additional data structure, we are just using some pointers, so that would be constant space. Okay, so the code has been passed successfully. Also you will get all the C++ and Java codes in my DSA repository. I will also mention the link of the codes in the description, so do not worry, just try to understand the logic for the here. Let us hit the submit button and we'll see the submission.
Then we will move on to the C++ code, and then finally we will end this video. So great, Java code has been successfully submitted. Okay, so here is the C++ code even. Let me just scroll it through so that you can see it. Again, I don't think the walkthrough is required again, because if you understood that Java code, how we have written the same code, the exact code we have written here in the C++. Let me just scroll through to the bottom of the code, and yes, let us hit the submit button for this C++ code as well. Great, every code has been successfully submitted. Now everything is covered for this particular question. Only the last thing, let's say a homework for you guys. So अगर आपने कोई क्वेश्चन किया, उसका वेरिएशन आपसे खुद से हो जाए, then वेल एंड गुड, आप अच्छे से उस चीज को समझ गए हो. नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पहली बार हो सकता है ना हो, बट देन अगेन सो लीड कोड पे एक प्रॉब्लम है, हार्ड कैटेगरी रिवर्स नोट्स इन के ग्रुप. तो इसमें देखो डिफरेंस क्या है. जीएफजीपी क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि जो लेफ्ट आउट नोट्स होते हैं, लेट्स से जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल देखो आप 1 2 3 4 5, तो k इक्वल्स टू 3 के लिए 1 2 3 एक ग्रुप बना लेगा, बट 4 5 में ये ग्रुप नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही नोड बचे हैं. तो ऐसे जो ग्रुप्स नहीं बना रहे हैं ऑफ के एलिमेंट्स, उनको आपको रिवर्स नहीं करना है. देखो 3 2 1, और जो ग्रुप्स नहीं बना रहे हैं जिसमें के एलिमेंट्स नहीं है, उनको एज इट इज छोड़ दो. जीएफजी वाले प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, वहां पे क्या था, उनको भी रिवर्स करना था, राइट. दिस इज सेम कोड व्हिच आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, व्हिच विल नॉट वर्क हियर. द एग्जैक्ट सेम कोड नॉट वर्क, बट यू कैन डू अ स्लाइट वेरिएशन इन दैट कोड एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू द आंसर, राइट. तो आप इसको ट्राई करना, एंड अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. कमेंट सेक्शन में बताना, ये कंग्रेचुलेशन, सो आपने कर लिया. एंड एल्स मैं आज तो नहीं, ये वीडियो के 2 दिन बाद या कुछ समय बाद मैं इसका कोड अपलोड कर दूंगा, बट डेफिनेटली आप जब व्यू कर रहे होगे तो आप कोड मिल ही जाएगा. सो यस, दैट इज इट फॉर टुडेज प्रॉब्लम, एंड लेट अस एंड दिस वीडियो ऑन दिस गुड नोट. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.